Good morning, students. Today we are going to start a new topic about geometry, that is lines and angles. Lines and angles is a branch of geometry which deals with the study of about different types of angles. You know very well there are different types of angles. Let us know. Before going to the lines and angles, I want to clear you that what is angle and how many types of angles are there. An angle is formed when two lines are intersect with one another in one single point, or we can say if there is a common point in between two line segments. Okay, suppose let AB is a line segment, and on AB we draw another line segment BC. So AB and BC में B एक common point होता है. At that time, so B is the point on which the angle is formed. This one is the angle. Okay, so what is the definition of angle? The definition of angle is that when the two line segments having a common point in between them, then the angle is formed. Now come to types of angles. We know that in this level, class 7, we study about 6 types of angles. One is the acute angle, you know very well. Then दूसरा वाला obtuse angle, third straight angle, right angle, reflex angle. These are such type of angles. और भी बहुत सारे angles है, हम पढ़ेंगे उसी चैप्टर में. आज हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, लीनियर पेयर एंगल क्या है, और उसके बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ कम टू, यू नो दैट आई डोंट वांट टू से अबाउट द डेफिनेशंस, यू नो इट वेरी वेल फ्रॉम द क्लास 6. नाउ कम टू एडजेसेंट एंगल. इन दिस टॉपिक फर्स्ट वी हैव टू अटेम्प्ट द एडजेसेंट. Now I am drawing an angle, a line segment from the B, starting from B. Let it is this is C and this is D. Now there is a point B on which two angles are formed. One is, now I can say this is one angle and this is two angle. Now I can say, देखो angle का नाम हम ऐसे लिखते हैं A, B और D. ऐसे देखो measure of angle A लिखते हैं, उससे पहले M measure of angle A, B, D and measure of angle DBC, okay, are adjacent. समझ में आ रहे हैं? और एक फिगर लेंगे, फिर उसके बाद डेफिनेशन समझेंगे. Let this is x and this is y and this is z. On that point z, I want to draw another angle. Let this is a straight line. Let it is M. Now in the point और एक लाइन डाल देंगे. Suppose A. In the point Z, there is 1, 2 and 3 angle. 1, 2 and 3 angle. 3 एंगल बना हुआ है. और 1, 2, 3 मतलब देखा हम कह सकते हैं 1, 2 का एडजस्टमेंट है, 2, 3 का एडजस्टमेंट है. लेकिन तो एक बच्चा बोलेगा कि सर 1, 3 का एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, यदि 1, 3 का एडजस्टमेंट नहीं होगा, 1, 2 का एडजस्टमेंट होगा और 2, 3 का एडजस्टमेंट होगा. ठीक है. नाउ कम टू द डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन? लेट अस tell me what is the definitions. We can say the definition of adjacent angle is that if there is two angles in between there is a common point in between the two angles, we can say the two angles having a common side. ठीक है, the two angles having a common side. If there is a common side in between two angles, then the two angles are said to be adjacent angles. Now हम लिख सकते हैं if there is a common side in between two angles, then the two angles are said to be adjacent angle. To be adjacent angle. समझ लिया? So if there is a common
साइड इन बिटवीन टू एंगल। देखो ये दोनों एंगल है, और एक बार समझाता हूँ, ये एक एंगल होगा, दूसरा एंगल होगा, और एक और दो एंगल में एक कॉमन साइड है, ठीक है, दिस इज BD, और दैट मींस ABD एंगल जो कि एक एंगल है, और DBC एंगल जो कि दो एंगल है, और एक एंगल और दो एंगल में BD इज द कॉमन साइड, ठीक है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं एक एंगल एंड दो एंगल, नंबर 1 एंगल एंड नंबर 2 एंगल आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, नाउ कम टू vertically opposite angle। vertically opposite angle, different types of angle में सेकेंड में हम पढ़ेंगे vertically opposite angle। if two straight lines are intersecting with each other with a common point, जैसे कि मैं फिगर बना रहा हूँ, देखो सपोज ये AB एक स्ट्रेट लाइन होगा और XY भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, दोनों में दो आपस में O पॉइंट में दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो मैंने जो एंगल बनाता हुआ, देखो ये नंबर 1 एंगल होगा, नंबर 2 एंगल, चार एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, नंबर 3 और नंबर 4। ये जो चार एंगल फॉर्मेशन है इसमें से एक एंगल दो एंगल का वर्टिकली अपोजिट होगा, तीन एंगल दो एंगल चार एंगल का वर्टिकली अपोजिट होगा। 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू 3 एंड 2 इज वर्टिकली अपोजिट टू 4। और वी कैन से एक बच्चा कह सकता है कि सर 1 और 2 ये दोनों क्या होगा, 1 और 2 ये दोनों क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। 2 और 3 ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल होगा। 3 और 4 ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल होगा, और 4 और 1 ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल। दैट मींस वर्टिकली अपोजिट मतलब आई एम टेलिंग यू समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो आई एम वर्टिकली अपोजिट टू यू, ठीक है। सो 1 एंगल एंड 3 एंगल एंड और एक पेयर होगा 2 एंगल एंड 4 एंगल आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये हुआ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। नाउ कम टू स्ट्रेट एंगल, ठीक है। हम देखेंगे स्ट्रेट एंगल के बारे में। वर्टिकली ऑपोजिट के बाद स्ट्रेट एंगल देखेंगे। लेट अस ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेट का नाम है MN होगा, और इसके बीच में और एक लाइन हम डाल देंगे, सर समझ में आ रहा है। लेट ये O पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, जो P पॉइंट है, ठीक है। मैंने जो दो एंगल अभी बनाया, एक और दो एंगल, ठीक है। अब मैं जो फिगर मेरा है, एक एंगल और दो एंगल, ये दोनों क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल होगा। दैट मींस क्यों लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर इसीलिए है क्योंकि दोनों एंगल को हम यदि ऐड करते हैं, और उसको स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं, ये दोनों एंगल को यदि हम ऐड करते हैं कि दोनों को ऐड करने के बाद उसका वैल्यू 180 डिग्री होगा। तो इसीलिए 1 एंगल एंड 2 एंगल आर स्ट्रेट एंगल। और हम कह सकते हैं 1 एंगल और 2 एंगल ये भी एडजेसेंट एंगल होगा, लेकिन सभी प्रकार का एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट एंगल नहीं होगा। यदि ये दोनों एडजेसेंट एंगल में दोनों को मिलाने के बाद 180 डिग्री होता है, तो वो दोनों एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं। लेकिन इतना सारा एडजेसेंट एंगल हमने पढ़ा, सभी एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट एंगल नहीं हो सकता, ठीक है। यदि स्ट्रेट एंगल होगा तो दोनों को बीच मतलब ऐड करने के बाद 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। नाउ और लास्ट दो हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और बहुत सारा एंगल के बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ, एक फिगर में बनाता हूँ, उसमें से तुमको दिखाना है कि कौन सा एंगल एडजेसेंट होगा, कौन सा एंगल वर्टिकल अपोजिट होगा, और कौन सा एंगल स्ट्रेट एंगल होगा, ठीक है। अब मैं फिगर बनाता हूँ, अपना कॉपी में कर लो ये फिगर। सपोज ये मैं एक फिगर बनाया, ये तुम्हारा होमवर्क है। सपोज ये L1 होगा और L2 लाइन होगा, और ये L3 L4, ठीक है। ये दोनों और में डाल देता हूँ, ये वाला एक L5 और L6, ठीक है। ये दोनों, ये तीनों स्ट्रेट लाइन आपस में O को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस फिगर में तुमको दिखाना है नाम बता करके कि कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट, लिख लो। एक है वर्टिकली अपोजिट दिखाना है, वर्टिकली अपोजिट
दूसरा में एडजस्टेंट एंगल, थर्ड स्ट्रेट एंगल, और उसको कह सकते हैं लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, बस ये तीनों को तुमको इस फिगर में दिखाना है। ये तुम्हारा में होमवर्क है और इसको मैं लास्ट क्लास में चेक करूंगा। अभी जो भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, थैंक यू।